ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਇਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਬੁਲਾਏ ਇਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਬੁਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਿਆਦ ਹਰੀ ਬੋਲ ਮਿਟਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਂਦੇ ਜੀ ਓ ਬੈਰ ਮਿਟਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਂਦੇ ਜੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮਿਲਾਂਦੇ ਜੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮਿਲਾਂਦੇ ਜੀ ਇਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈਏ ਇਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਓ ਦੂਰਾ ਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆਰੇ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਈਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਾਈਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰਿ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारेभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम वाजुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की शिव महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। शिव भक्तों की जय। शिव गणों की जय। हरि भक्तों की जय। हरि भगवान की जय। जयकारा श्री राम लीला बोल सांचे की जय। जयकारा गंगे हर हर महादेव शिव शंभो। जिन्हां दे सिर उत्ते हथ रांदा, जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरांदा, उन्हां नूं कहदा डर वे लोगो, उन्हां नूं कहदा डर वे लोगो। जिन्हां दे सिर उत्ते
ਹਰੀ ਬੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਸੱਟੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਸੱਟ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਜੈ ਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ। ਹਰੀ ਬੋਲ। श्री राधे। जय हो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨ ਸੰਗੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਨੋ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨ ਸੰਗੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਨੋ ਮੰਗੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਹਰ 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 ਮਾਤਾਲੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਹਰੀ ਬੋਲ। ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੁਖ ਆਏ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਸੁਖ ਆਏ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ गुरां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। हरी बोल।
ਸੁਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੁਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮਨ ਚਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਓਏ ਮਨ ਚਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਮਨ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਮਨ ਚਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਮਨਾ ਪਿਠਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਮਨਾ ਪਿਠਾ ਮਾਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਬੈਠਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਕਵਾਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹਰਾ ਹਰਾ ਕਾ ਉਹ ਕਵਾਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹਰਾ ਹਰਾ ਕਾ ਮਨਾ ਚਲ ਮਨਾ ਚਲ ਮਨਾ ਚਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਓ ਮਨਾ ਚਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਜੈ ਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰੀ ਬੋਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੀਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਜ ਰਜ ਗੋਤੇਲਾ ਮਨਾ ਰਜ ਰਜ ਗੋਤੇਲਾ ਓ ਮਨਾ ਚਲ ਮਨਾ ਚਲ ਮਨਾ ਚਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਮਨਾ ਚਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਜੈ ਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਹੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਲਾਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਪਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲੇ ਜਪਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਤ ਬਣਾ ਮਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਤ ਬਣਾ ਓ ਮਨਾ
चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए। हरि बोल जय हो। जिथे सतगुरु नाम दे, जिथे सतगुरु सत्संग जिथे सतगुरु सत्संग नाम दे। पूरी मन की जोत जगा, पूरी मन की जोत जगा, जोत जगा, पूरी मन की जोत जगा। चले मना चले आगे बढ़ी चलिए, मना चले वृंदावन चलिए। सभी भाव से गाए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जिथे राधा किशन पे झूम दे, राधा कृष्ण पे झूम दे, राधा किशन पे झूम दे, ओ जिथे राधा कृष्ण पे झूम दे। तू भी रेशम डोरा पा, ओ तू भी रेशम डोरा, ओ मना जाके झूला झूला, ओ मना जाके झूला झूला, ओ मना चले वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। हर हर महादेव हरि बोल जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। नारायण। ओ 88,000 ऋषि मुनियों के बीच तीर्थराज प्रयाग संगम के ऊपर सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों 12 ज्योतियां लिंगें च एक ज्योतिलिंग होया केदारनाथ। हिमालय के ऊपर केदारनाथ भगवान 12 ज्योतिलिंग भगवान शंकर दे मुख्य अवतार। ज्योतिलिंगे का ध्यान करने कन्ने, उनका सिमरन करने कन्ने, उनका नाम लेने कन्ने परमात्मा शिव की कृपा होती। केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिलिंग है
ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ब्रह्म हत्या जैसे पाप, गुरु हत्या जैसे पाप। केदारनाथ का मंदिर जो 5 पांडवें बनाया। पंज पांडव जिले कौरवें की मारिए हस्तिनापुर का राज प्राप्त किया। इंद्रप्रस्थ का राज, इंद्रप्रस्थ आखदे दिल्ली, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ। धर्मराज युधिष्ठिर जिसले राजा बने, पर वो राजा बनिए भी इं रोंदे रोंदे। राज पाठ विच उनका मन नहीं लगता। थोड़ी मुट्ठी आवाज करना। राज पाठ विच भी उनका मन नहीं लगता। जिसले बंदे कोई पाप लगी होंदा ना, उसले बंदे का मन भड़कदा। पाप बंदे दे मन की भड़कांदे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान की पूछा, है प्रभु इस राजपाट च मेरा मन नहीं लगता, मन इयां डरदा रहिंदा, मेरे मन विच शांति है नहीं, मन भड़कदा रहिंदा। राजा ये भी नहीं खुश है, राजा ये भी नहीं सुखी है, क्योंकि मेरी आत्मा की नहीं सुखी तो मैं के राज करूंगा। कारण की भगवान कृष्ण आखन लगे, हे धर्मराज तुसें की गुरु मारने का पाप लगी, तुसें की अपने भरा मारने का पाप लगी है, तुसें की भीष्म पितामह की मारने का पाप लगी है, बाबा मारने का, परदादा मारने का, गुरु मारने का, गुरु द्रोणाचार्य भरा रिश्तेदार। इस पाप का तुसीं प्रायश्चित करने पाउणा। जिस पाप का बंदा प्रायश्चित करे वो पाप बंदे का इत्थे खत्म हो जाए, वो कन्ने नहीं जमदा। जिस पाप का बंदा पश्चाताप करादा, समझ लो पाप इत्थे मुक्की है बंदे दा, वो कन्ने नहीं जाना। बंदे ने प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जिस पाप का बंदा पश्चाताप नहीं करता, प्रायश्चित नहीं करता, वो पाप बंदे दे कन्ने चंबड़े दा रहुंदा, वो बंदे दे कन्ने जली जांदा, वो झाली विच भी नहीं सड़दा है, वो बंदे की घसीटिए ते वो पाप फिर नरक दे विच ले जांदा। तां साडे शास्त्रें बंदे दे आजू दी वंड कीती। 25 साल तड़ी ब्रह्मचर्य आश्रम, खूब पढ़ो, पढ़ाई च मन लाओ। 25 कोलू 50 साल तड़ी साढ़े धर्म ग्रंथ आखदे खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, क्योंकि उसले शरीर तंदुरुस्त होंदा। पैसा किस लिए कमाओ कि उस पैसे कन्ने धर्म करो, पुण्य करो। जिस पैसे कन्ने अस पुण्य नहीं करना, वो पैसा फिर कमाना कहदे वास्ते।
ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸ ਪੁੰਨ ਕਰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਆਦਾ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਆਦਾ, ਤੇ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕੰਨੇ ਬੰਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਉੜਦਾ, ਧਰਮ ਕਰੀ ਉੜਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ। ਦੁੱਖ ਫੜਕਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। भगवान कृष्ण आखदे जेड़ा दान नहीं करता वो गरीब होई, पक्की गल। गरीब होइए ते फिर वो पाप करता, और गरीब होई। दान जरूर करना। कलयुग च धर्म का एक पैर बचेदा सिर्फ दान। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप और दान। त्रै दे तोड़ी उड़े दे कलयुग ने। सत्य ना कोई सच बोला दा इस युग वो भी पैर गया। दया बंदे दे अंदर रही नहीं, वो भी पैर गया। तपस्या कुछ कोल होंदी नहीं, शरीर के तंदुरुस्ता नहीं, तपस्या कुछ करनी। त्रीया पैर भी गया, एक पैर बचेदा कलयुग च सिर्फ दान। भगवान आखदे जेड़ा दान नहीं करता वो गरीब हो जांदा। गरुड़ पुराण च भी लिखेदा। पर फिर भगवान ने आख्या कि दान करना देश काल पात्र दिखी। देश काल पात्र तीन चीजां दिखिए दान करना। जेड़ा त्रै चीज का विचार नहीं करता ओदा दान दिते दा निष्फल होई। ये भगवान आखदे ने कृष्ण महाराज। देश मतलब स्थान। तीर्थ प्रदान कीते दा 1000 गुना फलदा। घर विच दान करने कन्ने 10 गुना फल मिलता। गौशाला च दान करने कन्ने 100 गुना फल मिली। कुसा गंगा दे किनारे, नर्मदा दे किनारे तीर्थ पर दान करने का 1000 गुना फल हुंदा। और कुसा शिवाले विच दान करने का 1,00,000 गुना फल। ते 7 पात्र की दान करने कन्ने करोड़ गुना हुई। फिर भगवान आखा दे देश जगह करी दिखिए दान करना। इयां नहीं अन्ने बास उड़ जाना। काल देश काल काल होइया समा। मस्या की दान जरूर करो। वो मस्या ही कीते दा दान जेड़ा पितरें की प्राप्त होंदा। कादसी की दान जरूर करो, जरूर। सरंगांदी की दान जरूर करो। सूरज ग्रहण ऊपर दान जरूर करो। ये काल, ये भगवान ने 4 दिन महीने दे दान करने लिए रखे। कादसी, मस्या, सरंगांद, द्वादशी जरूर कर। फिर आई है पात्र। देश भी हुई या काल भी हुई या पात्र। भगवान आखा दे जिथे अस दान करा दे पहले दिमाग करने सोचना, खोपड़ी करने सोचना कि दान थाड़ साड़ा खरी जगह जाना नहीं जाना।
आखदे कुकर्मी की दान देने वाला भी नरका च जंदा ते लैने वाला भी नरका च जंदा है। भगवान ने गीता च आख्या। देश काल पात्र सोचना दिमाग कन्ने कि जिथे दान करा दिया ठीक जगह लगा है कि नहीं लगा। जे तुसे गुस्सा कुकर्मी की दान करी उड़िया थोड़ा देने वाला भी नरका च चली या लेने वाला भी नरका च चली, दोए नरका च। दान कुथे करना जिथे बंदे दा दिमाग काम करा दा, पैसा साड़ा खरी जगह लगा। कुते अन्न क्षेत्र खोले जिथे 11 बंदे रोटी खा दे उथे दान करो, जरूर करो। खोपड़ी दी थी ना भगवान सोचने दी। कुकर्मी की दान दिता तुसी, ऐसे बंदे की दान दिता जेड़ा बंदा थोड़े दान दी शराब पी उड़ा दा, देने वाला भी नरका च लैने वाला भी नरका च। ये भगवान ने आख्या। कुकर्मी बंदे की तुसे दान दिता जेड़ा दान दा थोड़े दा जुआ खेला दा, देने वाला भी डुबी या लैने वाला भी डुबी। ये भगवान आख्या। जिथे अन्न क्षेत्र खुले दा उथे दान दियो, जिथे 11 बंदे लंगर खा देने उथे जरूर दान करो, जरूर। जिथे गवां भुखियां मरा दियां दिखी लेना कि गवां भुखियां मरा दियां ना, उथे कोई जरूर दान करो। बंडा पाओ जड़ो गवें कोई, उन्हें मंगना थोड़ा। जिथे कुते मंदिर बना शिव जी महाराज, उस मंदिर च 10 रुपए पाई कैली। जिन्ना चिर वो मंदिर धरती पर आओगे इन्ना चिर तुस उस मंदिर उस देवता दे लोक च वास कर गए हो जिदा मंदिर बना। अगर राम दा मंदिर बना दा, कृष्ण दा मंदिर बना दा, हरि दा मंदिर बना दा, शिव दा मंदिर बना दा, जगदम्बा मैया दा मंदिर बना दा, जेड़े 10 रुपए थोड़े उस मंदिर च लगे दे ना, वो पुण्य थोड़े खत्म गए नहीं होने। क्योंकि मंदिर खत्म नहीं होना, थोड़ा पुण्य खत्म नहीं होना। सोचिए दान करना। ये भगवान कृष्ण आखा। इयां नहीं अन्ने बाह सुटते जा। पर अच्छी जगह दान उस बंदे का हुंदा जिहदी नेक कमाई हो। नहीं तो अच्छी जगह दान नहीं। अच्छी जगह पैसा ओदा जाना जिहदी नेक कमाई हो। जिहदी नेक कमाई नहीं ओदा दान भी व्यर्थ जाना। ये भगवान आखा देश काल पात्र दिखिए दान का। जियां इत्थे अन्न क्षेत्र चला किन्नी दुनिया आ रही है लंगर खा दी। खा दी दुनिया बनी। उत्थे दान करिए जाओ, कुते साढ़े ना दा भी कोई 4 साधु ब्राह्मण इत्थे भोजन करी जाओ। इये लई जगह दान कर जिथे अन्न क्षेत्र खुले। ऐसी जगह दान करो कि जिथे मंदिर दी कोई साढ़े पैसे दी सफेदी हुई है, मंदिर दी साढ़े पैसे दी डेवलपमेंट हुई है। ये नहीं कि तुस दान दिया दो, अगला थोड़े दान दिंदे के बोतल पीओ ता गड़ 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 कर दे, तुस भी नरका की गए ते वो भी नरका ही गए। वो दान च नहीं आंदा, वो दान च नहीं आंदा। दान च वो चीज आंदी जिथे दान थोड़ा फले अगे बधे। ये भगवान कृष्ण आखा देना। कुसा गरीब दी कन्या दा ब्याह गुरु नानक दी गुरु ग्रंथ विच एक श्लोक आंदा, सुखी वसी मस्कीनियां आपना बार चले, बड़े बड़े हंकारियां दा नानक गर्भ गल। ये ग्रंथ च
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੋਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਭਲਵਾਨ ਕੁਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋੜਿਆ ਸੁਖੀ ਵਸੀ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟੰਡੋਰਾ ਫਿਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਕਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਗ अगर वो मस्कीनिया की ढाई उड़े तो 1000 सुन्ने दे रुपए उसी माली दी 1000 रुपए सुन्ने दियां बिस्कुट ते जेड़ा ओदे कन्ने कुश्ती करने लई खड़ा होगा उसी 500 रुपए गुरु नानक दिखाए बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई कुसा दी जरूरत नहीं पई मस्कीनिया करने कुश्ती लड़ने वास्ते ऐसा पहलवान एक माचुड़ू जिहा बंदा आया माचुड़ू जिहा बंदा अड अड लब्भा गरीबी ने तोड़ी उड़े दा उस बंदे ने कपड़े खोले ते मस्कीनिया करने कुश्ती करने ले आई गुरु नानक दिखा दे सारी दुनिया हैरान हुई यार मस्कीनिये ने तू इं मूली अंग लेखा पत्थर मरोड़िए तो मारी तू की मौत का डर नहीं है तू मस्कीनिये कने कुश्ती करने जा उन्हें आख्या गरीबी सब कुछ करवांदी मजबूरी सब कुछ करवांदी मिगी भी पता कि मस्कीनिये ने मिगी मूली के पत्ते अंदर मरोड़ी होगी जिले उठिया कुश्ती करने लई मस्कीनिये कन्ने पंजा मिलाया मस्कीनिये ने आख्या तुगी चाह ते इत्थों दा किलोमीटर संडिए तुगी मौत का डर नहीं है मेरे कन्ने कुश्ती करना आया उस बंदे दी अखियां चों अथरू वगी रोया आखा मिगी भी पता है कि मैं तेरे कन्ने कुश्ती नहीं कर सकदा पर मेरी लड़की दा ब्याह मेरी कुड़ी दा ब्याह मैं इन्ना गरीब हाँ कि मिगी कोई कर्जा नहीं दिया मैं कोई द्वार नहीं दिया सारे फिरी आया मैं कुसा ने कर्जा नहीं दिता परसों मेरी कुड़ी दी बरात आनी मैं टंडोरा सुनिया कि जेड़ा मस्कीनिया कने कुश्ती कर उसी 500 रुपया नाम तो मैं सोचा चलो मैं मरी जांगा 500 रुपया तो याग मेरी लड़की को याग मेरी लड़की दा ब्याह होया इस करिए महाराज जी में खड़ा हो मस्कीनी दी अखियां चू अथरू बगी पहलवाना दी अखियां चू अथरू बगी तियां वालियां दे सिर नीवे होंदे जिड्डा मर्जी बंदा होना शहनशाह धी गी टोरदे होई उदियां भी अखां शम शम रोक तुस दिखी लाओ राजा जनक जिसले अपनी पुत्री सीता की विदा करा रहा हालांकि वो बदेह है राजा जनक जिले उन्हें अपनी पुत्री सीता की विदा किया डोली च पान लगा ते राजा जनक वृक्ष दे ओले सपिए शम शम रोंदा शम शम अपनी पुत्री दा डोला दिखिए शम शम रोंदा हा जिले सीता माता ने डोली चू दिखिया मेरा पिता रोआ सपिए रोआ शम शम अथरू बगा अपनी पुत्री की जंदे देखिए ताख दे तियां वालियां दे सिर नीवे होंदे सीता डोली चू बाहर निकली अगे प्यो सपिए रोआ वृक्ष दे ओले सपिए रोआ पुत्री की जंदे सीता माता अपने पिता दी गले लाया पिताजी तुस रुआ दे तुस ते बदे हो थोड़े ते कदे भी अथरू नहीं दिखे अज रुआ दे उन्हें आख्या बेटी अज तू मेरा घर सुन्ना करिए जा रही अज मेरे घर दियां सारियां रौनकां लिए जा रही पुत्र मैं तुझी बड़ी मुश्किलें पालिया पढ़ाया जवान किया
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਇਸ ਕਰੀਏ ਵਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੁਖ ਬਚੂ ਤੇਰੇ ਕਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪ। ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਰੋਇਆ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਮੇਰੀ बेटी कुआरी रही है नहीं। उस समय मस्कीनिया ने आख्या जे धी दी खातर तू आया ते जा फिर मीह पिठ लाई लेंगे, तुगी 500 नहीं तुगी 1000 ते 500 1500 रुपया थो याग तेरी कुड़ी सैल गो याग। आखदे मस्कीनिए ने उस समय उस निक्के जे बंदे कोलू गरीब बंदे कोलू अपनी पिठ लाई ली, कुदी खातर धी दी खातर। गुरु नानक दिखा दे है, गुरु नानक ने आख्या बंदा हुआ जेड़ा कुसा दीन दुखी बेसहारे की गले लांदा ओदे कोलों बड़ी पूजा कोई पूजा नहीं। जियां कल मेरे को बुजुर्ग बैठे रहे, गोपाला जी वो पिछे बैठे रहे ते सुना दे कि प्रधान और मिगी आंच नहीं आउंदी, मेरा कोई अगे पिछे नहीं है, लेकिन जेड़े इस कमेटी दे प्रधान ना वो मिगी आंच नहीं आउंदी। कल मेरे को सुना दे उनके सारे उपर मैं इत्थे रवा दा, उनके दिलासे उपर मैं इत्थे रवा दा, हालांकि मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन मेरा गरीब दा सारा हुआ मिगी गल अंदर मिगी सुना दे, नहीं तो मिगी कौन रखा रखा। मेरा आखने का मतलब पूजा ये नहीं कि तुस किलो किलो धूप दिखाई हो, पूजा ये भी है कुसा दीन दुखी बेसहारे दा सहारा बनो, इहदे कोलों बड़ी कोई पूजा नहीं। कुसा दी दर्दगी अपनी दर्द महसूस करो, इहदे कोलों बड़ी कोई भक्ति नहीं। भगवान आखदे तू कुसा दे अथरू पूंछ तेरे जिंदगी च भी बगन भी नहीं देंगे, पर जे तू कुसा दे अथरू बगागा ते तेरे भी जिंदगी च सुकन नहीं देंगे। भगवान आखदे तू कुसाई खट भी तू कदे जिंदगी च नंगा नहीं होने। ये भी एक भक्ति है, ये भी पूजा है। तो गुरु नानक ने उसले गुरु ग्रंथ विच उस पहलवान का नाम लिखी उड़े, मस्कीनीए का नाम। उन्हें क्या वाह तू सड़ा पहलवान नहीं है, तेरा हिरदा इन्ना नरम है, इन्ना नरम है कि तू आपू पिठ लाई ली या हजारे लोगों के विच, लेकिन इदी बेटी बोई नहीं है, तेरी पिठ लगने कन्ने इदी लड़की का ब्याह हो जाना। वाह ये ले साधु, साधु ये नहीं कि कोई बेस का नाम, साधु ओदा नाम जिहदा सुभाव पर हित लई सोचा। ता मैं सुना रहा कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो इत्थे तुस दिखा दे 24 घंटे लंगर चला हुआ, हजारां संगतां आदियां ने लंगर खा दियां ने। ऐसी जगह पर्ची जरूर कटाओ, जरूर कटाओ। थोड़ी 100 रुपए करने खरे कोई साधु ब्राह्मण भोजन करिए, ये जगह थोड़ा 100 रुपया लेखा लगे। जे थोड़े 100 रुपये करने कोई साधु ब्राह्मण रोटी खाई या कोई गरीब रोटी खाई या कोई बेसहारा रोटी खाई या, समझ लो वो पैसा थोड़ा हीरा बनी, सुन्ना बनी।
ਰਾਜਾ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਜੁਆਰੀ ਹੀ ਜੁਆਰੀ ਜੂਏ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖੇਲੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾ, ਤੋਲੇ ਤੋਲੇ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਦੇਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪਈ। ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਏ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਜੁਆਰੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਘਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਆਖਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੁਆਰੀ ਜਿਸਲੇ ਮਰੀਏ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਗਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤੀ ਆਖਿਆ ਦਿਖਾ ਹੈ ਜੁਆਰੀ ਕੇ ਘਰੀ ਆਇਆ। ਬੇਈ ਖੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਤੇ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਈ। ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕਲਮ ਮੂੰਹਾਂ ਚ ਪਾਈਏ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਮਾਰੀ ਉੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉੜਿਆ। महाकाल है ना, मौत की मारी उड़िया। फिर विष्णु ब्रह्मा के आखने पर जींदे कीते। धर्मराज ने जिले सुनिया भी इहदे 10 रुपए कुते बोले बाबा दे मंदिर इट लगी इहदी है, कोई सीमेंट दी गुत्थी लगी इहदी है। महाराज जी वो जुआरी 3 लोक दा राजा बने। किन्ने लोक दा? 3 लोक दा राजा, राजा बली 3 लोकी दा राजा, जिदे 10 रुपए बोले बाबा दी सेवा च लग गए, जिदे 10 रुपए बोले बाबा दी मंदिर दे विच कोई इट लगी है। वो 3 लोक दा राजा बने। मिता सुना कोई मंदिर बना दा 5-10 रुपए उत्थे पांदे जाओ, जिन्ना चिर मंदिर धरती पर रहोगे इन्ना चिर थोड़ा पुण्य नहीं खत्म होगा। वो 10 रुपए खत्म हो नहीं, पर जे तुसें पैसा दे उड़िया कुछ जुआरी हैगी या शराबी हैगी, वो थोड़ा दिते दा निष्फल, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ। भगवान आखदे देने वाला भी डुबिया, लैने वाला भी डुबी। ये तो है ना, सानू दिमाग दिते कुत्थे देने आसे कुत्थे नहीं देने। कुपात्र की दिते दा दान नरक दे विच। मैं सुना रहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान की आखा दे प्रभु मी राजा ये भी सुखी है, राजा ये भी मेरा मन भड़का। कारण की चक्रवर्ती राजा फिर मन भड़का। उन्हें आख्या जा तीर्थ कर, 12 ज्योतिर्लिंगे दे दर्शन कर, जिथे जिथे शिव जी दे मंदिर ने जा शिव जी दे मंदिरें दे दर्शन कर। बोले बाबा दे दर्शन करने करने बंदे दे पाप कोई हिंदे सड़ी हिंदे। 12 ज्योतिर्लिंगे दे दर्शन करी आओ पांडवो, इन्ने ताड़ी तुसें शांति नहीं मिलनी, इन्ने ताड़ी तुसें भड़कते रहना, क्योंकि तुसें पाप लगी है गुरु मारने दा, बाबा मारने दा, परदादा मारने दा, भरा मारने दा। ये सारे पाप तुसें चंबड़ी। जिन्ने ताड़ी तुस 12 ज्योतिर्लिंगे दे दर्शन नहीं कर गयो, इन्ने ताड़ी ये पाप थोड़ा तुचना नहीं। ये भगवान ने आख्या। फिर थोड़ा मन शांत हो गए, पाप बंदे दे मन की भड़कांदे। उसा समय 5 पांडव चली पे तीर्थ यात्रा।
11 ज्योतिलिंग कर ले उन्हें दर्शन करी ले 11 ज्योतियां लिंगे 11 ज्योतियां लिंगे दे उन्हें दर्शन करी ले जिले कांशी विश्वनाथ के दर्शन कीते गंगा स्नान कीता गंगा स्नान करिए जिले विश्वनाथ के दर्शन कीते मारकंडे ऋषि मिले मारकंडे ऋषि ओ न जिंदी उम्र 4 जुग है मारकंडे ओ ऋषि ही जिन्हें 16 साले मरी जाना है 15वीं वर्षगंढ आदि ही जन्मदिन आदा हा ते मां प्यो रोआ दे है मारकंडे बारा आया दिखिया मां प्यो की रोंदे किस लिए रोआ दे अज मेरा जन्मदिन है अज तुसें खुश होना चाहिए उन्हें आख्या बच्चू तेरी उम्र बस खत्म इस करिए रोआ मारकंडे ने आख्या पिताजी जिन्ना चिर भोले बाबा का दरबार खुला ना कोई मिगी मारी नहीं सकता मैं भोले बाबा की भक्ति करंग मैं महादेव का महामृत्युंजय जप करंग जमराज की युरत नहीं है कि मिगी लईए जाए मौत की युरत नहीं है कि मिगी लईए जाए मारकंडे करा गया 1 साल मरने ही रहिए रहा ये लिया कोई आप शंभू मंदिर है उत्थे बहिए ते लगा जप करन बहिया भोले बाबा की मंत्र जपन लगा जिले साल पूरा होया ते जमराज लैन आया मौत लैन आई जिले मृत्यु लैन आई ते जमराज ने कोटिए शिवलिंग की कलावा मार ली कि आख्या बोले बाबा मरने का डर मरना तो एक दिन है पर प्रभु तेरी पूजा करने का बड़ा आनंद आवा जे मैं मरी है तो तेरी पूजा कियां करेंगे उसा मौके उस शिवलिंग च शंकर भगवान प्रगट होइए महादेव प्रगट होइए महादेव ने इन्नी गल आखी उन्हें आख्या जमराज किस वास्ते आया भाई मौत की पूछया किस लिए आया आखला महाराज दी आजू खत्म हुई दी है इसी लैन आया बोले बाबा ने आख्या जेड़ा महाकाल दी भक्ति करे जेड़ा महाकाल दी पूजा करे उसी तुसें ही लैने दी कोई लोड़ नहीं इदी आजू खत्म हुई शिवजी महाराज ने कापी पेन लिया ब्रह्मा ने 16 साल आजू लिखी दी शिवजी महाराज ने पन्ना कन्ने उदी आजू 4 जुग करी उड़ी के 4 जुगे बच्चा मर गए ये मर गए नहीं 4 जुग आज जो मारकंडे जी 4 जुग उम्र है उन सतयुग दिखेगा त्रेता दिखेगा द्वापर दिखेगा कलयुग दिखेगा वो मरदा ही नहीं है उदी भक्ति करिए बोले बाबा की भक्ति अस निके निके दुखे की रोआ दे अस निके निके दुखे की रोआ दे बोले बाबा ने मौत को परे करी उड़े अपने भगत मौत को बड़ा दुख की हुंदा वो मारकंडे ऋषि पांडवे की कांशी मिले जिले 5 पांडव गंगा स्नान करिए विश्वनाथ के दर्शन किए ते कांशी मारकंडे ऋषि मिले आख लगे गुरु जी 11 ज्योतिलिंग करी ओड़े ने शांति अजे भी अजे भी मन पड़का भगवान ने तीर्थ यात्रा पर भेजा है 12 ज्योतिलिंग करो मारकंडे ने आख्या जाओ केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिलिंग है जिथे जाने कन्ने थोड़े सारे पाप खत्म हो जागन तुसेंगी शांति मिलेग और सड़ी शांति नहीं मिलेग पाप खत्म नहीं होगन उत्थे तुसें भगवान बोले बाबा दे साक्षात दर्शन हो कुसा दा भी जेड़ा मार्गदर्शन है ना वो संत महापुरुष करते पे उसले 5 पांडव कांशी दा केदारनाथ की चली पे केदारनाथ 12 ज्योतियां लिंगे च एक ज्योतिलिंग है हर हर महादेव शंभो कांशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरि बोल हरि वो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव बोलो शंकर भगवान की जय तो जिसले पंज पांडव केदारनाथ आए अपने पाप धोने लिए जिले अपने पाप धोने लिए केदारनाथ आए जिले गुप्त कांशी पुजे ना बाबा केदारनाथ कोलों 22 किलोमीटर पिछे गुप्त कांसी उत्थे पंजे पांडवेंगी बोले बाबा दे दर्शन किस रूप विच बड़ा बड़ा नंदी पहाड़ा जिड्डा नंदी सामने खड़ोई आ पांडवें बैल नंदी नंदी दे रूप विच शिव जी दे दर्शन ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ शिव जी खरे तुसें कुसा गरीब दे रूप विच दर्शन देई हो कुदे बखारी दे रूप च दर्शन देई हो अस धोखा खाई
ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੱਦੇ ਦਾ ਆਵਾ ਦਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਅਸ ਕੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। खरे भोला बाबा को जे इंद्र नहीं पहचानी सकिया तो उस कल कथा सुना दे। इंद्र दा गुरु वृक्षपति नहीं बोले बाबा की पहचानी सकिया, अस कल युगी जीव कियां पहचान। खरे साढ़े बिच ज्ञानी बईए दा जिन सारी दुनिया बनाई दी अपना आप ही बनाई लेंदा। इस करिए जेड़ा लभदा जय शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। मैं सुना रहा कि बड़े बड़े नंदी दे रूप विच पंज पांडवे दे अगे खड़ोई भोला बाबा शिव जी महाराज। भीमसेन आखन लगा भैया टग्गे बड़े बड़े दिखे, पर पहला टग्गा दिखिया जेड़ा पहाड़ा अंग लेखा बड़ा टग्गा। टग्गे दे निके निके होंदे, एडा टग्गा पहली बारी दिखा। एडा नंदी। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा सियाणा है, बड़ा समझदार है, जिदा नाम है धर्मराज, सूझबूझ वाला। धर्मराज युधिष्ठिर ने अखां बंद कीतियां। उन्हें आख्या मारकंडे ऋषि ने कांशी आख्या हा उत्थे तुहें बोले बाबा दे दर्शन हो गए ते बोले बाबा दे जिले दर्शन हो गए थोड़े पाप उन बख्शने ने। बोले बाबा ऐसा तो नहीं है कि शिव जी आइए नहीं तो एडा टग्गा तो हो ही नहीं सकता। जिलियां धर्मराज युधिष्ठिर ने अखां बंद कीतियां ते उसी टग्गा नहीं लभा। उसी टग्गे दे विच शंकर भगवान दे दर्शन। हत्था च तरसूल फड़ी दी, मत्थे उपर चंद्रमा दा मुकुट, पूरे शरीर उपर भस्म, महाराज जी डमरू और शेषनाग गला दे विच पाए दा। युधिष्ठिर की शिव जी लभा दा, बाकी वाले की टग्गा लभा। धर्मराज युधिष्ठिर की आखन लगा, पंजे पांडवे आखा था चुप करिए सी, फड़ो ये पैर फड़ लो, ये टग्गा नहीं हुआ, ये भोला बाबा ही। पंजे पांडव उस टग्गे की फड़ लगे। टग्गा उत्थे गुप्त होई। जिस जगह वो टग्गा गुप्त होया उस जगह का नाम पई गुप्त कांसी। अज भी केदारनाथ कोलू 22 किलोमीटर पिछे गुप्त कांसी है। उस शहर का नाम है गुप्त कांसी। उत्थे टग्गा गुप्त होई। जिले पांडव उसे फड़ लगे ना, वो पहचानिए कि बोला बाबा, वो गुप्त होई। जिथे गुप्त होया उस जगह की गुप्त कांसी आ गया। पांडव उस टग्गे दे पिछे लगदे, कदे टग्गा वो प्रगट होई जंदा ते कदे गुप्त होई जंदा, कदे प्रगट होंदा कदे गुप्त होंदा। चलदे 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 पंज पांडव जिले केदारनाथ पुजे, जिथे मंदिर है बोले बाबा दा, उत्थे टग्गे की भीमसेन ने फड़ लिया। दुंब फड़ ली कोठी। हुण भीमसेन च भी 10,000 हाथी दा बल। भीमसेन ने टग्गे दी दुंब फड़ ली। वो टग्गा जमीनां दे विच, मुंडी जमीनां दे विच बड़ी ते पिछू दा पंजे पांडव दुंब फड़िए खिचा दे। जिन्ना पंजे पांडवे उस टग्गे दी दुंब फड़िए खिंचिया ना, वो पिछला पासा उत्थे रही आ, जेड़ी मुंडी ही वो जाई पशुपतिनाथ नेपाल दे विच चली। बोलो शंकर भगवान, बोलो पशुपतिनाथ भगवान। अज भी तुस केदारनाथ जाओ जां नेट च दिखियो, वो कोई शिवलिंग नहीं है,
ਉਹ ਢੱਗੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਮੰਨੋ, ਪੂਰਾ ਢੱਗੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੀ ਹੀ ਢੱਗੇ ਦੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਚਲੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਠਮਾਂਡੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਖਦੇ ਬਖਤਾਪੁਰ, ਬਖਤਾਪੁਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇਦਾ ਡੋਲੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ। ਬੋਲੋ ਡੋਲੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਮੁੰਡੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ। ਡੋਲੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਹੁਣੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਨੇਪਾਲ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਢੱਗੇ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢੱਗੇ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਢੱਗੇ ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਧੜ ਮਨ ਪੂਰੇ ਢੱਗੇ ਦਾ ਰੂਪ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਂਡਵ ਖਿੱਚਾ ਦੇ ਹੈ, ਮੁੰਡੀ ਚਲੀਏ ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਧੜ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਲੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ। ਡੋਲੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। तो महाराज जी उस समय जिन्ना पांडव खिंचा दे है उस ढगे दे विच शंकर भगवान प्रगट होइए। बोलो शंकर भगवान हर हर महादेव। जिन्ना शिव जी प्रगट होए पंजे पांडवें दे सामने केदारनाथ बोले बाबा आखा दे मैं थोड़ी परीक्षा लै रहा, मंगो भाई जो कुछ मंगना। मैं खुश होई हाँ थोड़े तुसें मेरे 12 ज्योतिलिंगे दे दर्शन कीते ने। जेड़ा 12 ज्योतिलिंगे दा नाम ले जुड़े ओदे भी पाप तो ही होना। तुसें दे दर्शन कीते ने ते जेड़ा उनके दर्शन करदा ओ ते शिवलोक दा अधिकारी। तुसें 12 ज्योतिलिंगे दे दर्शन कीते ने, मैं खुश हाँ। कोई वरदान मंगो। पंजे पांडवें आख्या प्रभु ये जेड़ा पाप लगी है सानू, असें अपना गुरु मारी उड़िया, असें अपना पड़दादा मारी उड़िया भीष्म पितामह, असें अपने भरा मारी उड़े, चाचे ताए मारी उड़े, पुत्र मारी उड़े, जवाई मारी। ये राती मुझे सौन नहीं दिंदा। धर्मराज युधिष्ठिर आखा ते सुखने च मिगी लभदे रहिंदे। महाराज जी मैं राज कुथों करना, मैं तो मैंटल होई है, पागल होई है, वो मिगी सौन गै नहीं दिंदे। ते महाराज जी मारकंडे ऋषि ने सानू भेजिया कि बोले बाबा दे दर्शन करो, जिड्डा मर्जी बंदे की पाप लगे दा वे, केदारनाथ भगवान दे दर्शन करियो पाप तो चींदा। गुरु मारने का पाप, ब्राह्मण मारने का पाप, जो भी है वो सब तो चींदा। बोले बाबा ने आख्या फिर इं करो, मेरा इत्थे एक मंदिर बनाओ, इसा जगह मेरा मंदिर बनाओ, थोड़े सारे पाप खत्म, ओदे बाद तुस राज करो इंद्रप्रस्थ दा, तुसें शांति मिले। उसलिए पंजे पांडवे कृष्ण भगवान भी प्रगट होई उत्थे, द्रौपदी उन्हें विशाल केदारनाथ का मंदिर बनाया। ये जिहड़ा केदारनाथ का मंदिर है ये पंजे पांडवें बनाया। अज भी केदारनाथ मंदिर के अंदर तुम देखियो पंजे पांडवें दी मूर्तियां ना, शिव जी की मूर्ति नहीं है, पंजे पांडवे, द्रौपदी ते कृष्ण भगवान। लेकिन विचार करने वाली गल है कि जिस पत्थर का वो मंदिर बनेगा आले दुआले ओकड़ा पत्थर के कोई कुथों पांडवे वो पत्थर लिया जिहड़ा केदारनाथ आले दुआले बड़े पहाड़ ना पर ओकड़ा पत्थर के नराला।
ਉਸਲੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਗੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਭਗਵਾਨ ਫੜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਦੀ। ਜਿਲੇ ਅਸ ਅੱਛੇ ਕੰਮੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਛੋੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਾਂਡਵੇਂ ਦੀ ਬਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜੀ ਦੀ ਹੀ। ਪਾਂਡਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਗ ਕਰਾਈ ਉੜੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਗ ਕਰਾਈ ਉੜੇ। ਆਖਦੇ ਜਿਸਲੇ ਪਾਂਡਵੇਂ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਿਖਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੜੀ ਬੁਝੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਐਡਾ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੱਗ? ਕਿਉਂ? ਪਾਂਡਵੇ ਦੀ ਬਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫੜੀ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਉਹ ਫੜਦਾ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਉੜਦਾ ਉਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵੇਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਾਇਆ ਹਾ, 12 ਕਰੋੜ ਸਾਧੂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ, ਸੁੰਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਲੀਆਂ ਮਾਂਜਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਗਾ ਉਹ ਥਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਕਰਾਗੀ ਲੈਗੀ। ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ। ਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ। ਪਿਆਸ ਰਾਜਾ ਹੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਂਡਵ ਬਨਵਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹਮਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਕੰਨੇ ਲਈ ਆਓ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਥਾਲੀਆਂ ਮਾਂਜੇ? ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਕਰੇਂਗੇ ਲਈ ਆਓ, ਸੁਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖਾ ਲਾਲਚੀ ਭੁੱਖਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਈ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਸਪਾਲੀ ਲਈ ਧੋਤੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਈ 2 ਥਾਲੀਆਂ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। खैर जे कोई 10-20 रुपए चुकी लाए तो उसी समझाना, उसी मारना नहीं। मारो उन्हें लोगों की जेडे करोड़े रुपए के घटाले करा। बड़े चोर ही कोई चोर नहीं आखा दा, जेड़ा 10 रुपए 20 रुपए चुकता उसी मारी मारी ऐसे सिर पर नहीं दिने। तो मेरा आखने का भाव यह है, उस समय महाराज जी उस ब्राह्मण ने थाली चोरी कर ले। जिले खजाना दिखिया तो एक थाली घट हो आदि। धर्मराज युधिष्ठिर की सुनाया, यज्ञ का प्रधान है भाई महाराज जी एक थाली ते गिलास चोरी हुई है खजाने च। धर्मराज युधिष्ठिर ने आख्या चोर फड़ो। मेरे धर्मराज दे राज विच चोर किथों आई? अज एक चोर आया, कल उस चोर ने इत्थे 10 चोर और लिया नहीं, परसों 100 चोर ही आना। इस करिए चोर नहीं मारो, चोरा दा प्यो फड़ो। केड़ा धर्मराज युधिष्ठिर ने जेड़ा हजारां लाखां करोड़ां थालियां दान करादा, उसी एक थाली कने के चिंता बनी। पर धर्मराज आखदा गलत सोच वाला बंदा जेड़ा वो सारे बंदे ही खराब करी। जिदी गलत सोच ना, गलत विचार ना,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਕਚਰਾ ਭਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜੋ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਥਾਲੀ ਸਪਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕੱਸਾ ਖਲ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਦੀ ਹੀ। ਜਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ 2 ਥਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, 2 ਗਲਾਸ। उस ब्राह्मण की फड़िए धर्मराज की कचहरी च लई, युधिष्ठिर की कचहरी च आख लगे महाराज जी ये ब्राह्मण है जिन्हें थाली चोरी की थी, इसी सजा दी है। धर्मराज की मुंडी चुकी है, युधिष्ठिर की मुंडी चुकी है। उन्हें आख्या मैं क्षत्रिय हाँ, मैं ब्राह्मण की सजा नहीं दे सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हाँ, मेरी कोई अधिकार नहीं ब्राह्मण की सजा देने का। मैं धर्म संकट च फसी हाँ, जे मैं ब्राह्मण की सजा दिना ते मेरी ब्रह्मत्या का पाप लगता है, ते जे मैं इसी सजा नहीं दिना ते धर्म जंदा करां दे करां। बड़े अच्छे लोग होंदे हो, सजा भी देनी है ते देनी भी है। उसने धर्मराज युधिष्ठिर की कोई विचार नहीं मना चाया कि मैं क्या करा। उसने धर्मराज युधिष्ठिर प्रहलाद की कचहरी च गया। प्रहलाद सत्यवादी राजा, चलो इसका फैसला जो प्रहलाद करे। जिले प्रहलाद की कचहरी च गए, प्रहलाद की पूछया भाई सुना भाई इस ब्राह्मण ने यज्ञ विच एक सुन्ने की थाली चोरी की है, इसी महाराज के दंड मिलना चाहिए। प्रहलाद ने आख्या धर्मराज सजा का हकदार ब्राह्मण नहीं है, सजा का हकदार राजा जिदे राज विच ये गरीब ब्राह्मण रहिंदे। क्या वो राजा पूछ ही नहीं सकता कि तुस चोरी तां की को गरीब है, ते जे तू खुली दक्षिणा उसी दिती दी हुंदी कि कदे भी चोरी नहीं करना। सजा का हकदार ब्राह्मण नहीं है, सजा का हकदार वो राजा जिदे राज विच ये भुखे ब्राह्मण होंदे। किन्ने न्यायकारी लोग तां उन्दियां कथावां आदियां महाराज। धर्म बंदे करने जांदा, शरीर बंदे करने जांदे। उस समय महाराज जी पांडव में विशाल मंदिर बनाया। केदारनाथ भगवान का जिहड़ा अज भी है, महाप्रलय विच भी वो मंदिर नहीं रुड़िया, बाकी सब कुछ रुड़ी। महाराज जी उपर एक शिला आई, बड़ी बड़ी शिला। वो शिला भी जियां कोई नंदी हुंदा नहीं। जिल्ले प्रलय होई सब कुछ खत्म होई आ, सब कुछ डुबी आ, पहाड़ा दे उपर एक शिला आई। वो शिला दे दर्शन करो तो इयां हुंदा जियां नंदी के हुंदा, जियां नंदी के शिव जी के मंदिर के पिछे बही है। वो शिला जिहड़ी ही मंदिर के पिछे खरोई ही, सारा पानी उन्हें साइडे साइडे उपर कड्डी उड़िया, मंदिर बचिया बाकी कख नहीं बचिया। बोलो शंकर भगवान। अज भी वो शक्तियां हैं महाराज, लब्बा दियां बेशक नहीं है, पर अज भी वो शक्ति, अज भी वो शक्ति है। तुस नहीं चिंता करो कि अस समा भन्नीए, इन्नी गर्मी विच काठगढ़ आया ते पता नहीं हाजरी लगी है कि नहीं लगी। बोले बाबा दऊं अखें कन्ने नहीं, त्रऊं अखें कन्ने तुसें दिखा देना। जिले तुस मत्था टेक दिओ वो आशीर्वाद दिंदे ने, सावा बच्चू तेरी हाजरी लगी है मेरे दरबार। तुस नहीं चिंता करो भी खरे व्यर्थ आए, उदी निगाह चो बेशक सानू नहीं लब्भा दा, पर उसी अस सारे लब्भा दे। ओ मंदिर केदारनाथ, बोलो केदारनाथ भगवान। 12 ज्योतिर्लिंग एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। पांडवें केदारनाथ के दर्शन करिए। उस केदारनाथ दे सर्दियों के दिन पूजा देवते करे। अज सियाल उस मंदिर की पूजा करने 6 महीने उस मंदिर की पूजा स्वर्ग का राजा इंद्र करना होंदा। सर्दियों के दिन जिले मंदिर बंद हो जाना नहीं,
ਸਿਆਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਾ ਜਿੱਲੇ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀ ਆਉਣੀ, ਦਿਵਾਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੜੀ ਦਿਵਾਲੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਖੱਲ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਗੁਪਤ ਕਾਂਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਜਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀ। शिव जी महाराज इंद्र ओदा पुजारी बनता शिव जी का। केदारनाथ मंदिर है जिथे अज भी 6 महीने देवते पूजा करते ना, 6 महीने मनुख पूजा करते। इस मौके 6 महीने मंदिर लभदा भी नहीं बर्फा करने, उले देवते आउंदे अजकल। लेकिन एक कमाल आ, एक कमाल बड़ा बड़ा, जिस दिन पुजारी मंदिर बंद करी आना ना, तो दिया पर ही आना घ्यो दा, जोत बाली आनी। 6 महीने बाद जिले किवाड़ खुलना तो उन्ना के घ्यो दे झोड़ा ते दिया वाला होना। बोलो शंकर भगवान। 6 महीने बाद जिले मंदिर खुलना तो दिया जगा होना। इसका मतलब फिर रोज कोई आंदा उत्थे पूजा कर, जेड़ा दिया बुझन भी नहीं दिंदा। अज भी उत्थे एक सिस्टम है। केदारनाथ के दर्शन करिए, 5 पांडवें की शांति मिली, जेड़े भी पाप होए सारे भस्म होइए। बोले बाबा के दर्शन करिए। बोले बाबा ने आख्या जाओ तुस गुरु मारने के पाप कोलों, भरा मारने के पाप कोलों, बाबे पड़दादे मारने के पाप कोलों मुक्त होइए। जाओ हस्तिनापुर का राज करो। फिर पांडवें का मन राजपाठ च लगा। पापी बंदे का मन भड़कदा रहा, पाप बंदे दे मन च खल्लर मचाई। कई लोग आखते ना मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, उसने पाप मते अंदर होइए, वो मन की भड़कांदा। बारह ज्योति लिंगें च मल्लिकार्जुन एक ज्योतिलिंग होए आंध्रा प्रदेश के विच। इंदी कथा सुनी दी होग ना ते जमदूत लैन नहीं आऊगा, शिव जी के गण लैन आऊगा, जेड़ा 12 ज्योतिलिंगे याद रख। मल्लिकार्जुन ज्योतिलिंग है भगवान का, चेता रखना। 12 ज्योतिलिंग ने, 7 पुरियां ने, 4 धाम ने, 51 शक्तिपीठ ने। ये मूर्तिमान होइए, मूर्तिमान होइए, कई बार प्रगट हो जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिलिंग आंध्रा प्रदेश के विच। ओदा नाम मल्लिकार्जुन कियां पिया? आखदे जिसले शिव जी के 2 पुत्र हैं गणेश ते कार्तिके, एक दिन दोए लड़ते लड़ते आइए, माता पिता की आख लगे साड़ा ब्याह करो। एक आखला मेरा करो, दूआ आखला मेरा करो। बोले बाबा ने आखे जाओ पहले घूमी आओ, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करी आओ। जेड़ा पहले परिक्रमा करी आओ ओदा ब्याह पहले हो। कार्तिके मोरा पर बैठा तो उड्डी आ, ते गणेश ने सोचा मेरी सवारी चूहा, मैं चूहे उबर जांग, ते रस्ते च बिल्ली लभी तो मेरे वाला कम। मी तो ये पहले आ ही नहीं सकता क्योंकि इन्हें उड्डीए जाना, मी धरती परे जाना, चूहे ने। गणेश बुद्धिमान बड़ा। गणेश ने 2 आसन बसाए, 2 बिन्ने ले आसन, सैल आसन बसाए। तो उधर शिव पार्वती आइए, आख लगे गणेश तू अजे गया नहीं, कार्तिके तेरा भरा कुसले का चलिए जा, तुम ही परिक्रमा करिए, फिर थोड़ा ब्याह करचे। गणेश ने माता पिता की आख्या शिव पार्वती पहले तो इस बिन्ने उपर बवो, आसन उपर बवो। उन्हें क्या करना, कि उन्हें कहा बैठो तो सही। दोने माता पिता की बिठाया, उनकी आरती की, उनकी पूजा की, उनके दोने दे पैर धोते, फिर उनदियां पकरमा लैन लई पिया। शिव जी पार्वती आखदे तू अजे भी नहीं गया?
आख लगा पिताजी तुस कई बारी माता की कथा सुनाते हो कि जेड़ा अपने माता पिता दियां पकर्मा करी लैंदा उसी सारी पृथ्वी की पकर्मा का फल लभी जांदा ते पिताजी फिर तुस गलत सुनाते हो। शिव जी सोचन लगे भाई शास्त्र ते गलत नहीं, तो उन्हें आख्या पिताजी फिर हूँ पहले मेरा ब्याह करो, क्योंकि मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लई, अपने माता पिता की कर लई तो सारी पृथ्वी की होई। शिव जी ने तो पार्वती ने गणेश उपर खुश होए, उदी अकल उपर खुश होए, उदी बुद्धि पर खुश होए, क्योंकि उन्हें माता पिता की सेवा की। गणेश का ब्याह हुई, उहदे घर 2 पुत्र भी होई, शुभ ते लाभ। कार्तिके बेचारा फिरा दा जे पता नहीं कुदर कुदर जादा, कुदे बद्रीनाथ केदारनाथ घूमी आदा, उहदे घर 2 मुड़े भी होई। जिले वापस आवा दा हा ते रस्ते च नारद मिली, देव ऋषि नारद ने आख्या भाई तू कहदे लई इन्नी जल्दी जादा? आख लगा मी जल्दी इस करिए जादा, अस 2 भरा यात्रा पर निकले दे हां, पिता ने आखे दा जेड़ा पहले आओगा ओदा ब्याह होई जाना, ते गणेश अजे बड़ी पिछे होना, ते मी बड़ी अगे हां, मेरा ब्याह होई जाना। नारद ने आख्या नारायण नारायण तेरा ब्याह अगे होना, गणेश दे 2 पुत्र भी होइए, तेरा ब्याह अगे होना है? माता पिता ने तेरे कने छल कीता, गणेश का ब्याह करी उड़िया, उहदे पुत्र भी होइए, उथों कार्तिके भगवान रिवर्स होई। उन्हें आख्या निक्का ब्याही उड़िया ते मी रही। कार्तिके चांदा कि नहीं बोना, वो चांदा हा भगती करना, ओदा मन है भगती दे विच, ब्याह करने दा ओदा मन गै नहीं। ओ कार्तिके वापस होई आ, कुत्थे उठी आ? आंध्रा प्रदेश दे विच श्री सैल पर्वत दे उपर कृष्णा नदी दे किनारे मल्लिकार्जुन भगवान, बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। मलिक मैंने पार्वती, अर्जुन मैंने शिव। मलिक पार्वती की आख दे, अर्जुन शिव की आख। जिले शिव पार्वती की पता लगा कि पुत्र रुसी है, नारद ने सुनाया, वो ते अंदर चली है तपस्या करन श्री सैल पर्वत दे उत्थे कृष्णा नदी, बड़ा सोहना स्थान है, बड़ी अच्छी जगह है। कम से कम भी कोई 100 किलोमीटर जंगल लंघिए जाने पड़ता, सड़ा जंगल ब्यावा। उस जंगल च ना तुसें कोई दुकान मिलनी, ना तुसें कोई पेट्रोल पंप मिलना, ना कोई, बस उस जंगल दे विचों मंदिर है मल्लिकार्जुन। महाराज जी बड़ी अच्छी जगह है, उत्थे जाइए। जिले शिव जी पार्वती अपने पुत्र की मिलनगे कार्तिके की, ते कार्तिके की पता लगा मेरे माता पिता आए ना, कार्तिके 12 योजन और ऊपर जाई चढ़िए पहाड़ी दे। शिव जी ने बाज मारी, बेटा अस तू की मिलना आए कैलाश उपरा ते तू फिर अगे जा रखे गल। उन्हें आख्या पिताजी अज दे बाद मैं भजन करना, मिगी कोई मिलना नहीं आ। उसले शिव ते पार्वती अपने पुत्रा दी खातर उत्थे ज्योतिलिंग दे विच प्रगट होई है, जिदा नाम मल्लिकार्जुन होया। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान जय। मल्लिकार्जुन दे रूप विच उत्थे प्रगट होई। कन्ने उत्थे एक कुंजा शक्ति पीठे च एक पीठ है ब्राह्मरी देवी, ब्राह्मरी देवी शक्ति पीठ भी है ते ज्योतिलिंग भी है। उसले शिव पार्वती मस्या मस्या की शिव जी जंदे, पुण्या पुण्या की पार्वती जंदी अपने पुत्रा की मिलने लई। ये 12 ज्योतिर्लिंगे च एक ज्योतिलिंग है। एक ज्योतिलिंग आई आ त्र्यंबकेश्वर। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिलिंग है पुणे महाराष्ट्र दे विच, जिसी नासिक आखने, नासिक पंचवटी गोदावरी दे कंढे।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੰਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਾਗੀਰਥ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਗੀਰਥ। ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਗੀਰਥ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 60,000 ਪਿਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਪਿਤਰ ਮੇਰੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਤੇ मी राजा बनिए के लेना, पहले मैं अपने पितरों की मुक्ति दिया। उस भागीरथ ने तपस्या करिए गंगा धरती पर लियांदी ते अपने पूर्वज तारे 60,000 पितरें की सदगति दिलाई। एक दे गंगा हुई, एक गंगा गोदावरी गंगा नासिक दे, वो गंगा लियांदी गौतम ऋषि पंचवटी, जिथे रावण ने सीता की चराया, उस जगह ना पंचवटी। नासिक भी आखदे, उस शहर नासिक की ओदा नाम पिया। उस जगह लक्ष्मण ने सरूपनखा दी नक कट्टी ही, जिथे सरूपनखा दा नक पिया बड़ोइए, वो शहर बनी आ नासिक, ते जेड़ा गोदावरी दे पारे आ वो बनी आ पंचवटी। गोदावरी दे इस पासे नासिक, पार पंचवटी। अज भी उत्थे पंज वृक्ष ने जिथे राम जी कुटिया बनाइए रहे, वो गोदावरी गंगा। 12 साले उत्थे कुंभ भी लगदा, उत्थे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गौतम ऋषि की खातिर वो भगवान शिव जी आए। गौतम ऋषि पर एक बार झूठा कलंक लगी या गौ मारने, गौ हत्या का कलंक लगी। झूठा, सच्चे नहीं मारी, झूठा कलंक लगा। कलंक झूठा दे कृष्ण भगवान ऊपर भी लगी है। ये दुनिया सोचती कुछ है। कृष्ण ऊपर मर्डर केस पई है, मनी चोरी का कलंक लगी है। वो ते भगवान है, उन्हें ते अपने दोए कलंक धोई ले, तो कोई और बंदा होंदा ते ओदे जेल च मरी जांदा। भगवान कृष्ण पर मर्डर केस दा परचा लगे, धोई लिया भगवान। ये संसार है, इन भगवान की नहीं बख्शिया। भगवान तो उसी लोके जाने के बाद मन्निया। जे सारे लोग उसी भगवान मनते तो कृष्ण कन्ने लड़ने वाले पासे 11 क्यों नहीं सेना जिहड़ी कृष्ण के विरोध विच लोग, ते जिहड़े कृष्ण वाले पासे उन्होंने 7 क्यों नहीं, जिहड़े कृष्ण वाले पासे लोग उन्होंने 7 क्यों नहीं, जिहड़े कृष्ण के विरोध विच लोग उन्होंने 11 क्यों नहीं। 11 ज्यादा होंगे 7, मतलब कृष्ण का विरोध करने वाले मते ते कृष्ण वाले पासे थोड़े। आज जाने के बाद जो भगवान बने उस समय पर बिच लोग होंगे जिहड़े पहचानी लैंदे। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का कलंक लगी या गौतम ऋषि की सारे साधु समाज ने बलादरी चू बाहर कढ़ी हुई। आखले पापी ने गौ मारी है, हालांकि बेचारे ने मारी दी है। कारण क्यों है? सारी धरती पर बरखा बंद हुई, 100 साल बरखा नहीं पई। सब जीव जंतु प्राणी जेड़े प्यासे भुखे मर लई वे। साधु का हिरदा बड़ा नरम हुंदा। देखिया दुनिया भुखी मरा दी, प्यासी मरा दी। गौतम ऋषि ने तपस्या की, वरुण देवता के नाम की वरुण देवता प्रकट हुई। वरुण देवता ने आख्या ऋषिवर थोड़ी तपस्या पर मैं खुश होया, कुछ मंगो। उन्हें आख्या बरखा बरा। उन्हें आख्या बरखा नहीं मैं बराई सकता। बरखा बराना जिहड़ा डिपार्टमेंट है वो भगवान कोल है, इंद्र कोल। मेरे को एकड़ा डिपार्टमेंट है। मी इयां कर नहीं सकना कि तू हथा कन्ने एक गड्ढा खोद, खूह कढ़ा, ते मी निर्मल जल कन्ने तेरा खूह भरी होनी, खड्डा भरी होनी। वो पानी जिंदगी च कदे सुक्क गए नहीं।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਉਸ ਪਾਣੀਆਂ ਕੰਨੇ ਉਹ ਖੱਡੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇਗਾ, ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਰਾਈ ਸਕਦਾ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਖੱਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਹ ਖੱਡਾ ਭਰੀ ਉੜਿਆ, ਕੁਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। जिन्ने साधु ब्राह्मण ऋषि मुनि सारे गौतम ऋषि की शरण चाहिए पे इत्थे रहने आए आश्रम च पानी दे हैं, कन्ने खाने भी कुछ है ते कन्ने पानी भी है। 11 ऋषि मुनि अपना अपना परिवार लिए गौतम ऋषि के आश्रम चाहिए। गौतम ऋषि ने सारे लोगों की शरण दी। महामारी फैली दी, भुखमरी फैली दी, उसले बंदे का भुखमरी फैली दी होवे ते बंदे का काम हुंदा कि अन्न दे भंडार खोली होने। उन्हें आख्या सारे की शरण दी, सारे गौतम ऋषि के आश्रम च रहिंदे हो, पानी सुकदा कि नहीं, बाकी कुते पानी नहीं। खूआ दे उपर एक दिन पानी भरन आए, गौतम ऋषि की पत्नी हल्या, कन्ने उहदे चेले, उधरा जेड़े बाकी वाले ऋषि ही ना उन्दियां भी पत्नियां पानी भरन आईयां, उनके भी चेले आए। गौतम ऋषि के चेले आखा दे पहले पानी असें भरना, साडे गुरु ने पूजा करनी। बाकी वाले ऋषियों दी पत्नी आखा दियां पहले पानी असें भरना। वो पानी भरने उपर लड़ी पई, लड़ाई लगी पई। गौतम ऋषि की वाह वाह आदि ही, प्रशंसा बड़ी हो आदि ही। बाकी वाले जेडे ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं ओदी प्रशंसा की दिखिए तो थोड़ा थोड़े जलदे भी है। वो भगती वाला है, उहदे कोल शिव जी की कृपा हो, शिव जी का भगत है। जेड़ा शिव जी का भगत हुंदा वो कदे भी भुखा रह ही नहीं सकता, गरीब हो ही नहीं सकता। गौतम ऋषि शिव जी का भगत है। सारी दुनिया भुखी मरा दी, गौतम ऋषि के घर अन्न के भंडार भरोचे। शिव जी के भगत के भंडार खाली हो ही नहीं सकते, पक्की गल है। उहदे अन्न धन के भंडार भरोचे दे रहोने, भावें जिन्ना मर्जी काल पाओ, क्योंकि भंडारी है ना। गौतम ऋषि के भंडार खुले दे, बाकी जेड़े है ऋषि वो जलदे है। अस भी ऋषियां, अस भी ब्राह्मण, लेकिन इदी बड़ी जय जयकार हो आदि, साड़ी कोई नहीं करा भाई। जिदी कोई जय जयकार करदा उहदे च गुण हुंदा, उहदे च कोई क्वालिटी हुंदी है। सानू के लोड़ है सड़ने दी? अस भी उहदे गुण जेड़े अपने उपर लागू कर लैचे, लेकिन आदत ये बनी है कि जिदी कोई बल्ले बल्ले बाह बाह हुंदी उहदे हाल देखिए सड़दे भुजदे रहोने। सड़िए के लभी जाना, अपना ढिड फूकी लैना नहीं, उहदी रीस करो, उहदे कोलों कुछ सिक्खी लाओ, उहदे कोलों गुण ले लाओ। यार एक क्वालिटी मिगी भी दे जेड़ी तेरे विच है, मैं भी अच्छा बना। उल्टा दुख करने, दुख करने करने और ज्यादा डाउन हो जाते। दुखी बंदा कदे जिंदगी च तरक्की नहीं करी सकता, दुखी बंदा तरक्की कर ही नहीं सकता। वो गौतम ऋषि भगत है शिव जी का, बाकी वाले उहदा दुख करते। हालांकि उन्होंने की शरण दी, उन्हें रौने की दिता, खाने की दिता, फिर भी उहदा दुख करा। उल्टा उहदा धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद आ बजाय उल्टा बंदा दुख करता, दुख करिए अपना बेड़ा गर्क कर। इस कलयुग च एक दुख बड़ा हुई है, एक जिथे जाओ बंदा अपने को फोटो खिंची आ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਦਾ ਤੇ ਆਪੂ ਕੜਿੱਚ ਕੜਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਉਸਲੇ ਖਿੱਚਦਾ ਜਿੱਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚੀ ਆ ਸਦਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਦਾਈ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਸਦਾਈ नहीं है। खरे फोटो खींचते खींचते गड़म की खल पई आई, कई पवा दे भी है। इहदे कोल बड़े मजनू कौन ने? हाँ कोई थोड़ा फोटो खिंचे, कोई तुसें आखे महाराज जी मेरा मन करा दा थोड़ा फोटो खिंचने ही, फिर जचदा
फिर वाकिया भी थोड़े च कोई क्वालिटी है। ते जे तुस आपू गईयां कड़िच कड़िच इन्ने ताड़ी खरे गड्डी मोटरसाइकिल उपरे लंघी है ये भी एक सदाई हुई दुनिया अजकल। तो मैं सुना रहा उसा समय दोने का झगड़ा हुई गौतम ऋषि की पत्नी का ते बाकी वाली ऋषि पत्नियों का झगड़ा हुई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲੜਨੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਤੌਲੇ ਲੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਮਿੰਟ ਫਾਹ ਬਣਾਈ ਉੜਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਆ ਇੰਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਅਥਰੂ ਰੋਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੋਈ ਪਾਉ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਇੰਨਾ ਖੱਟੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਸ਼ਮ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਕੜ ਵੀ ਲੱਗੇ 30-35 ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਗਰਾਈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਤਰੰਬਕੇਸ਼ਵਰ जिले लड़ी पईयां ऋषि की पत्नी आखा भी पहले पानी मीह भरना दूइयां आखा दियां पहले मीह भरना दूइयां ऋषि पत्नियां जाइए ऋषि घर गईयां अपने अपने पतियों की जाइए उन्हें 4 गल्लां होर चुगली लाई उनके कन्न भरे बेचारे ने गरीबे ने वो खरे भले भजन करते आख लईयां असें नहीं इत्थे रौना साड़ी कोई इज्जत नहीं सानू कोई पानी नहीं भरन दिया उन्हें ये गल आखी पे मेरे पति ने संध्या करनी है मिगी पानी भर लैन दे फिर तुस भरो इन्नी हारी गल उन्हें कोई 10 गल्लां होर करने लाई उड़ियां असें रौना नहीं साड़ी इज्जत नहीं है साड़ा ये है वो है वो बेचारे जेड़े घर वाले है वो अगे सोचा दे भी जाचे कुत्थे उन्हें आख्या कोई गल नहीं आखर ना असें रौना ही नहीं जां इहदे पर कोई कलंक लगे लाओ इहदे पर सारे ऋषियों एक सलाह की कि गौतम ऋषि का नाम दुनिया च बड़ा उच्चा हुई है ये ऐसा कलंक लाचे जिहदे कन्नै इहदे कोल आश्रम खोई लैचे इसी कड्डी ओड़चे ते इहदे आला आश्रम अस बली लैचे क्योंकि पानी उत्थे फसल उत्थे। सारे ब्राह्मण इकट्ठे होइए गणेश की मंत्रें कन्नै सद्या मंत्रें कन्नै गणेश भगवान की सदी लिया गणेश भगवान आइए भाई मंत्रें दे बस च देवता ना देवते ने आना गणेश आए बोलो ब्राह्मण देवता किस लिए बुलाया आख लगे कुसा चली इस महात्मा के ऊपर कलंक लगना चाहिए गौतम ऋषि गणेश ने समझाया मड़ा वो साधु है वो भगत है शिव जी का एक नंबर का साफ सुथरा बंदा ईमानदार ये ले बंदे पर कलंक नहीं लाना चाहिए बंदे उपर अपने उपर पई जाती बड़ा समझाया गणेश ने वो नहीं मनी हूँ देवता के बेचारा बस च हुंदा आख ले के करना उन्हें आख्या तू गौ बन गणेश जी आखन तू गौ बन तेरी खेती दे विच चार ते जिसले तू भी रोकन आग तो तू मरी जाए असें ये पर गौ हत्या का कलंक लाई गणेश गौ बनीए वो गौ सुक्की दी अगे कंबा दी ही कई दिने दे अड्ड अड्ड लब्भा दे जिले गौतम ऋषि की फसल खान लगी गौतम ऋषि ने सोचा गौ मता फसल खाई उड़ग बीमार हो जाग उन्हें आख्या चलो इसी बनी होना मैं गौतम ऋषि जियां लागे गए अजे लागे पुजे तो गौ मरी वो गौ है कि नहीं वो ब्राह्मण की चाल है जिले गौ मरिए ब्राह्मण सपिए दिखा रहे उन्हें गौतम ऋषि की बट्टे मारना शुरू करी उन्हें क्या गौ हथियारा पापी इस पापिया दे घर असें जे इत्थे आश्रम च रहा साढ़े देवकारे पितरकारे निष्फल हो जाने झूठा कलंक लगी आ वो बेचारा बथेरा आखा कख नहीं कीता उन्हें क्या तू इथों निकलने वाली गल कर अपने चेले भी लै अपनी घर वाली भी लै ते निकल इथों क्योंकि जे तू रहा तो गौ हत्या का पाप जिस लगे दा भी उत्थे देवते भी नहीं आते ते पितर भी नहीं आते उस घर च जिस बंदे को कोई गौ बछा मरी दा
ਜਿੰਨੇ ਤਾੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੰਗਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਬੰਦ। ਇੰਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੰਗਾ ਲੋਕ ਫਟ ਗੰਗਾ ਨਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਲੇ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਲੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਲਾਦਰੀ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਉੜਿਆ, ਸੇਕੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ। ਗੌਤਮ ऋषि आखन लगा मिगी डन लाओ भाई, चलो मेरे को गौ मरी है तो सजा लाओ मिगी। उन्हें आख्या तुझे ये सजा कि तू इस ब्रह्मगिरी पर्वत दी रोज पकरमा करनी ते गंगा धरती पर लियानी, स्वर्ग दे विचों गंगा धरती पर लियानी, उस गंगा का स्नान करके ते फिर तू असे बलादरी च शामिल करना। गंगा लियाना बड़ा मुश्किल है महाराज। रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाने, रोज ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करनी। गौतम ऋषि ने तो रोंदे रहना, झूठा कलंक गुहा पर लगे तो तो रोन आंदा पे, बेचारे पर झूठा कलंक बनी गया। ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਖੋਈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਖੂਹ ਵੀ ਖੋਈ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਸਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਢੀ ਉੜਿਆ ਬਲਾਦਰੀ ਚ, ਸੇਕੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ ਪਰ ਲਿਆ। ਉਸਲੇ ਗੌਤਮ ऋषि ਨੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਗੌਤਮ ऋषि ਨੇ, रोंदे रहना ते तपस्या करते रहना। कदू मेरा कलंक, रोज शिव जी की पूजा करनी। कहदी मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, शिव जी की पूजा करता हा ते रोज उस पहाड़ा की पकर्म करता हा गंगा लियाने वास्ते। उदी तपस्या पर खुश होइए। एक दिन गंगा मां प्रगट होई, बोलो गंगा मैया की जय। हरिद्वार वाली गंगा को पहले आई दी है गंगा, इसी गोदावरी गंगा। इदा महादम हरिद्वार वाली गंगा को मता है। राम जी ये नौंदे, राम जी ने अपनी माताएं का रिन जिहड़ा गोदावरी दे विच मुकाया। माता का रिन वो गोदावरी पिंड दे ही मुकया, राम जी ने भी मुकाया। गंगा प्रगट हुई, जिंजा गंगा प्रगट हुई आख ले ऋषि पर मैं तेरी तपस्या पर खुश हुई हाँ, कोई वरदान मंग। गौतम ऋषि ने आख्या माता मेरे पर गौ हत्या का कलंक लगी है। सारे बलादरी ने मिगी सेकी बाहर कढ़ी उड़े रहा। मां मिगी अपना स्नान करवा ते मिगी गौ हत्या के पाप को मुक्त कर। उसले गंगा मां का स्नान किया गौतम ऋषि ने। जिले स्नान करवाया गौ हत्या के पाप को मुक्त होए ऋषि, ते उस समय जिले गंगा वापस जान लगी ते गौतम ऋषि ने फिर पैर फड़ ले। उन्हें आख्या माता हुण वापस नहीं जाए, हुण इयां कर इस पर्वत के उपर सदा सदा के लिए वास कर। जब तक सृष्टि रहोग तब तक दुनिया तेरे विच स्नान करिए, अपने पापें की धोआ कर। जियां मीह अपना गौ हत्या का पाप धोता है, लोकें दे भी पाप जेड़े तेरे विच स्नान करिए। तुझने इस पर्वत पर वास कर। गंगा मां आखन लगी महात्मा मी इन्ना चिर नहीं आई सकती जिन्ना चिर शंकर भगवान नहीं आओ। शंकर भगवान के बगैरा मैं नहीं। जिथे शंकर भगवान होगन उत्थे आले दुआले गंगा जरूर हो। देखो इत्थे सब्जी ना सामने गंगा है नहीं है, सामने देखिए परमंडल शिव जी ने खल देवक गंगा। जिथे शिवजी गंगा होग उथे शिवजी होग, जिथे शिवजी होग उथे गंगा होग।
गंगा माँ आखन लगी मैं कली नहीं आई सकती महात्मा, जे तू शंकर भगवान की प्रसन्न करें तो फिर मैं इत्थे आऊंगा। उसले फिर ऋषि ने फिर शंकर भगवान की तपस्या की थी। शंकर भगवान प्रगट होए, आख लगे ऋषिवर कुछ मंगो, तू मेरा भगत आ। उन्हें क्या प्रभु मैं पापी हाँ, मेरे ऊपर झूठा गौ हत्या का कलंक लगी है, मेरी बलादरी ने सेकी उड़े। प्रभु ये गंगा तां इत्थे आउंदी है जे तुस भी आओ। शिव जी ने आख्या महात्मा तू निर्दोष हाँ, तेरा कोई अपराध नहीं है, तुकी कोई पाप नहीं लगेगा। ये जेड़े ब्राह्मण ना इन्हें कपट करिए तेरे ऊपर झूठा कलंक लाए, मैं इन्हें ब्राह्मणे की दंड देंगी। शिव जी आखन लगे मेरे भगत की सताया, मैंने ब्राह्मणे की दंड देंगी। गौतम ऋषि आखा नहीं प्रभु, खरा होया इन्हें मेरे ऊपर झूठा कलंक लाया। जे झूठा कलंक नहीं लांदे ते प्रभु मैं थोड़ी तपस्या नहीं करनी, ये गंगा नहीं आउनी, तुसें नहीं आउना। इन्हें झूठा कलंक नहीं लाया, इन्हें मेरे को और ज्यादा नाम जपाया। नाम जपिए गंगा आई तो तुस आए। बोले बाबा सदा सदा के लिए जब तक सूरज चंद धरती रवे इस जगह च विराजमान रवो, ज्योतिलिंग दे रूप च। उस मौके शंकर भगवान त्र्यंबकेश्वर रूप दे विच अज भी उत्थे विराजमान। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। गौतम ऋषि की खातिर आए त्र्यंबकेश्वर। उसा समय गंगा मां भी प्रगट हुई। गंगा मां भी उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर चली ते नासिक पंचवटी आई। अज उत्थे कुंभ का मेला लगा 12 साल हूं आने वाला मेला। वो गंगा खोलूगी माता महात्मा गोदावरी गंगा। जिले राम जी चित्रकूट रौंदे है ना, वो नासिक का गोदावरी भगवान के पैर धोने लई चित्रकूट आई। चित्रकूट जेड़े गए थे उन्हें पता होना, गुफा दे विच भगवान रौंदे है। जेड़ी देवते गुफा बनाई उत्थे गोदावरी गुफा दे विच प्रगट होई दी राम जी दे पैर धोने वास्ते। ना वो पिछे ते ना वो अगे ते गुफा च वो गोदावरी गंगा। राम जी ने उस गोदावरी गंगा च अपने माता के रिन्न कोलों मुक्त होए। अज लोग अपनी माता का कर्जा उत्थे मुकांदे। तो वो गोदावरी गंगा भी आई तो त्र्यंबकेश्वर भगवान भी गौतम ऋषि की खातर आए। उस समय शंकर भगवान ने आख्या तुसें ब्राह्मणों मेरे भगत की सताया, झूठा कलंक लाया। शिव जी महाराज ने उस मौके वो जिन्हें ब्राह्मणे ऋषि पर झूठा कलंक लाया रहा, ईर्षा करने वाले ब्राह्मण, दोखी ब्राह्मण, शिव जी ने उन्हें श्राप दे उड़िया कि जाओ तुस कलयुग च पैदा हो, तुस कलयुग च पैदा हो, थोड़े अंदर ईर्षा बड़ी हो, थोड़े अंदर दुख बड़ा हो। तुस ना मात्र दे ब्राह्मण हो गए हो, तुसें कोई मंत्र नहीं आ गए, तुस कोई पूजा पाठ नहीं कर गए हो, बस बगैर नहाते के तुस खाना पीना शुरू कर गए हो। ये श्राप जिहड़ा तुसें कलयुग दे विच लगे, इस उसले श्राप लगे। अज मते जिहड़े लोग ने जिन्हें पता भी नहीं कि पूजा क्यों पाठ क्यों, बस उठना रज सुटना तो फिर सही है। और ब्राह्मण संध्या नहीं ना करेगा, ब्राह्मण पूजा नहीं ना करेगा, वो ब्राह्मण खत्म हो जाए। ब्राह्मण ਲਈ संध्या जरूरी है, ब्राह्मण ਲਈ पूजा जरूरी है। क्योंकि जिसले ब्राह्मण पूजा करेगा तो बाकी वाले भी ब्राह्मण की देखिए पूजा करेगा, तो जिले ब्राह्मण नहीं करेगा बाकी वाले आखन यार ब्राह्मण नहीं करा असीं करने की क्या लोड़। तां भगवान ने आखेदा हे ब्राह्मण तू गुरु आ, तेरा आचरण हो तो समाज का आचरण हो। ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए, ब्राह्मण पूजा पाठी होना चाहिए। ब्राह्मण आल देखिए बाकी वाले भी पूजा पाठी हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। आओ उन्हें को भजन गाने साढ़े भंडारी जी इस मंदिर कमेटी दे विच सेवा करते काफी समा हो गया नहीं। मैस कमांडर है भी सेवा करा देना है काफी समय दी।
तो ये गल जे मैं नहीं दी मन्नी तो खरे कल मेरी रोटी नहीं लगी, क्योंकि मैस कमांडर जो है बड़ी सेवा करते, बड़ी सेवा। तो आखा दे महाराज इस बारी तो भजन नहीं सुनाया। मैं केड़ा भजन महाराज? सपार सैन जी ये साढ़े मैस कमांडर, बड़ी अच्छी कमेटी है भाई, सुलझे दे बंदे ने, ईमानदार बंदे ने, और भगवान के घर आनी सेवा करते हैं। अपना काम काज छोड़िए प्रभु के चरने दे विच लगे दे ने। जिन्नी संगत आवा दी है सारी संगत की खलाइए भेज दे, मां की सेवा करते हैं। मां खिलांदी ना, कोई भी संगत खादे बगैर नहीं जाती, हर कुसा की सेवा करते हैं। और मेरी उम्मीद है कि मते इस कमेटी विच जेड़े 80 की टप्पीए दे, ये भी बड़ी बड़ी गल। 70 80 साल की उम्र विच भी अजे सेवा दे विच हाज़र। बोले बाबा इन्हें तंदुरुस्त रखे, बोले बाबा इन्हां की सेवा इनके गुरु लेंदे रहे, इन्हां के समाज की सेवा भगवान की सेवा विच लभदे रहन तो मन खुश होंदा। तो अज भंडारी जी साढ़े आखा दे है महाराज तुसें भजन नहीं 7 दिनें च सुनाया। मैं आख्या मिगी तो चेता भुल्ली गेदा, हुण ते भजन मिगी याद ही नहीं रहे, इन्हें की याद है। तो आओ कड़ा भजन गाने। भंडारी की सिफारिश है साढ़े, मेरे नाम रासी भी है और मास्टर भी है, सारे के करा साहब नसीब ने। कल इस कमेटी की तरफा इत्थे बड़ा बड़ा भंडारा, जिन्नी भी इत्थे मैंबर ने कमेटी मैंबर, साढ़े प्रधान श्री ओम प्रकाश कटोच जी, जिन्हें पूरा सावन महीना होया इत्थे बोले बाबा दे दरबार च। राती मिगी सुना दे है कि कल साड़ा अपने सारे कमेटी मैंबरें दा बड़ा खाना है। बड़ा खाना हुंदा फौज विच स्पैशल खाना, बोले बाबा दा भंडारा। ते तुसें भी वो भंडारा कल खाइए जाना, प्रधान जी आखा। तो कल इत्थे बड़ा बड़ा भंडारा है, स्पैशल खाना है। वो जिहड़ा भंडारा है साड़ी सारे कमेटी मैंबरें दी तरफ, आपू पैसे पाइए तो वह भंडारा करते हैं हर साल अपनी नेक कमाई दे विच। तो कल भी तुसें जरूर आना, बोले बाबा का प्रसाद खाना, बोले बाबा के दर्शन करने ने। तो कल बड़ा भंडारा इत्थे, वो सारा भंडारा साड़ी कमेटी की तरफ है। ये सारा बंदोबस्त है तो चलो कमेटी ही करा दी है, पर कल उन्हें अपनी नेक कमाई च भंडारा पूरे शिव जी के नाम का शिव भगतें की खिलाना। तो मिगी तो भाई शिव गान के लगते हैं, शिव जी के गाने जेडे मैं रोज बोलना ना, शिव भक्तों की जय, शिव गणों की जय। शिव जी की जिहड़ी सेवा च ना वो शिव भगत ने। बोले बाबा आखदे 9 प्रकार की भगती च एक भगती है मेरे भगतें की सेवा, मेरे भगतें के दर्शन करिए जिहड़ा खुश हुंदा उहदे उपर मी बड़ा खुश हुंदा। ये बोले बाबा मी अपनी दर्शने कोलों भी खुश ज्यादा अपने भगतें के दर्शने चो नहीं। तो सारे शिव भगत ने शिव इंदे कोलों सेवा लैदे ने, बोले बाबा। और अज दी नहीं खरे 40 साल 50 साल हुई है सेवा करते ने इस दरबार दे विच। ते सेवा तुसीं सामने लभा दी है, ईमानदारी करी अन्न क्षेत्र चला है पूरा
ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫੇਦੀ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो मैं इस करिए आख्या भी कल तुसें जरूर प्रसाद पान आना। कमेटी की तरफा मैं बोला, ये मैं अपनी तरफा नहीं बोला, जी इस मंदिर की कमेटी है साड़ी, कल उनकी तरफा बड़ा भंडारा उन्हें भगवान को कल क्षमा मंगनी है कि हे बोले बाबा इस सावन मास विच जिहड़ी साड़ी कोई सेवा विच कमी रही है, साढ़े को कोई भी कोई त्रुटि हुई है, तो हे बोले बाबा साड़ी सेवा भी कबूल करियो और इयां के सानू आशीर्वाद देंदे रहो। इस करिए हर सावन माह च लास्ट दिन ये भंडारा पूरी कमेटी मैंबर करते हैं ते बोले बाबा को माफी मंगते हैं, क्योंकि बंदा गलती का पुतला है भाई। तो आखदे एक कमेटी की तरफा मैं तुसें सारें की अरदास की है कि कल तुसें बड़े भंडारे च जरूर शामिल होना। साढ़े प्रधान जी आखा दे कि सारी संगत की आखी, मिगी भी उन्हें आख्या भी तुसें भी प्रसाद कल पाइए जाना, तुसें भी सारे प्रसाद कल पाना, कल इत्थे बड़ा लंगर होना बोले बाबा की तरफा, कमेटी की तरफा। तो इस करिए मैं मैस कमांडर और साढ़े बेचारे मेरा ख्याल 85 साल दे होआ दे होने, धक्के भी लगन लई पे दे होने ने कि फिर भी सेवा करा कहते पिछे प्रधान दी पिछे प्रधान की खातिर सारे बंदे प्रेम करने बजे दे को प्रधान का प्रेम है, जिन्हें सारे थां दी थां रखे उनके प्रेम की खातर देखो इन्नी उम्र ना फिर भी सेवा दे विच हाजिर हुआ। मोड़ी अच्छा हो तो सारे भाई मजबूर हो जाते सेवा करने। तो साढ़े प्रधान उनके नाम की भी ताड़ी मारो, पूरी कमेटी की नाम की ताड़ी मारो। दूसरा ये है कि साढ़े मैं ये साढ़े मैस कमांडरों की गल सुनाऊं तो बेचारे की धक्के लगते रहते, अजे भी सेवा च हाजिर ना। मी 5 साल पहले की गल करा, 4 साल पहले मेरे को शामी 6 बजे कोई 100-150 बंदा आई, यकदम आई बसा आखन लगे महाराज अस भुखे दे रोटी, असें सोचिया शास्त्री है उत्थे रोटी उत्थे खा के वो कुछ सारे होई आए इधर नागनी नूगनी माता सारे ते लास्ट जिथे आए तो आखन लगे असें सोचिया उत्थे शास्त्री महाराज ने लंगर उत्थे खा के। मैं आख्या यार तुस ते आएगे हूँ दिन डुबे हो, हूँ पता नहीं भाई लंगर का क्या हिसाब किताब है। उले भंडारी साहब सैल दौड़ते स्पीड बड़ी हिंदी, मिगी स्पीड की गल एक चेता आई। मेरे को पिछे जी एक जनानी आई, मैं लास्ट भजन गांगा फिर आरती करके पहले कुलदीप जी साडी हैड मास्टर ने भी लेक्चरर, तो ये भी इतने सेवा दे विच सारे के भगवान शिव जी की कृपा इनके सारे घर सह नसीब सिर्फ बोले बाबा की भगती च लगे देने सारे। आओ मास्टर के कोल भजन एक सुन, इनकी आवाज बड़ी अच्छी है। हेलो जी महाराज जो आखा ने भई फरमाइश का भजन है, तो मेरा भी फरमाइश वाला ही भजन है। ये बाई जी
बैठे ने साडे पूजनीय ते पिछले साल भी ने भी आख्या तो मैं होर सुनाया भजन ने ते इस बारी वो आखन दे भी नहीं वही भजन सुनना ते मैं बाई जी दे लई ते प्रभु शिव शंभू जी के चरणों राम जी का भजन है बड़ा प्यारा। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। श्री राधे ताली मीठ मीठ ताली। जीवन हानि जाने छाया, जीवन हानि जाने छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, आपकी गठड़ी ढोई, सुख के सब साथी में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। श्री राधे ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जे जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई।
पर मान किया और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਰਾਮ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਵਣ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਸਤਕਰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਥਾ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। शिव महापुराण की कथा बोले बाबा को माफी मंगचे कि हे बोले बाबा इन्हें 7 दिनों च साढ़े को कोई त्रुटि रही तो माफ करिया। कलयुगी जीव आ, कलयुगी जीव के सुनाई सकता, पर जो भी है प्रभु साड़ी सेवा की जी अपने स्वीकार करे और आशीर्वाद तंदुरुस्ती का दिया सारे। जिन्हें भी तेरे इस द्वार दे विच कोई पैसा न पाया, परमात्मा दे धन दे भंडार भरी रखिया और इयां कि तेरे दरबार दे विच उनकी सेवा लगती रहे तो बार बार थोड़ा आशीर्वाद लेंदे रहो। उनके 2 ज्योतिर्लिंग रवा, एक भीमा शंकर वो भी महाराष्ट्र च पुणे, एक नागेश्वर वो गुजरात दे विच द्वारका। बाकी दे तुसें बाकी सारे सुनाई उड़े है। हूँ लास्ट भजन मैं गाइए फिर आरती करेंगे तो आरती के बाद तुसें लंगर खाइए जाना। कल बड़ा भंडारा भी तुसें आनी प्रसाद पाना जरूर शिव जी का। कल बोले बाबा के नाम का विशेष भंडारा, कल भी तुसें नवेद पाना और बोले बाबा का आशीर्वाद। आओ जड़ा भजन भंडारी जी आखा दे गाने। एक ऐब मेरा बाबल बेखे ते लग लग चिड़का मारे। ओए लख ऐब मेरा बोला देखे ते फिर भी गले नाल लावे, ते फिर भी गले नाल लावे। जे तू ना करे ते करे केड़ा, ते मेरियां सबो जरूरतां पूरियां नो। ओए लोकी तकदे ऐब गुना मेरे, ते तू तकदा सतगुरु रहमतां तेरियां नो। ते मैं तकदा सतगुरु रहमतां तेरियां नो। मैं नी मां मेरा
ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਉੱਚਾ ਤੈਨੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਇਨ ਉੱਚਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਈ ਦਿਲ ਦੇ ਅਮੈਰਮਾ ਦਿਲ ਦੇ ਆਸਾਂ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਵੇਲੇ ਮਹਿਰਮਾ ਦਿਲ ਦਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੰਡਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਰੋਈ ਟੁੰਡਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਰੋਈ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ ਟੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਵੇਲੇ ਮਹਿਰਮਾ ਦਿਲ ਦਿਆ ਓ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਜੈ ਹੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀਏ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜਦ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਜਦ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਆ ਫਿਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਬੰਗ ਸਦਾਈਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਬੰਗ ਸਦਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕਮਲੀ ਦੇ ਆਨਾ ਓਏ ਕਿਤੇ ਆ ਕਮਲੀ ਦੇ ਆਨਾ ਓ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਵੇਲੇ ਮਹਿਰਮਾ ਦਿਲ ਦਿਆ ਓ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇਲੇ ਓ ਆੜ ਜੈ ਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੈ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਆਂ ਬੁਰਾਇਆ
ਕਦੀਆੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਵੇੜੇ ਮੈਰਮਾ ਦਿਲਿਆ ਕਦੀਆੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਜਾਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਹਰੀ ਬੋਲ ਮਾਪੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਲੜ ਤੇਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਲੜ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਲਾਇਆਂ ਦੇ ਲਾਜ ਓਏ ਕਿਤ ਲਾਇਆਂ ਦੇ ਲਾਜ ਓ ਕਦੀਆ ਵੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਵੇੜੇ ਮੈਰਮਾ ਦਿਲਿਆ ਕਦੀਆ ਵੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਜਾਹੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਜਾਹੋ ਹਰੀ ਬੋ ਕਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਦਿਆ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਦਿਆ ਜਾਓ ਕਦੀਆੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਵੇੜੇ ਮੈਰਮਾ ਦਿਲਿਆ ਕਦੀਆੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਜਾਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜਾਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਲਿਖ ਲਿਖ
शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ तो मियाँ आज्ञा जे नहीं सुनाया तो साल बाद दुआर ही आना भंडारी का तो चलो ये भंडारियों का भी कर्जा मुक्की आ कर्जे बंदे ने मुकाइए के जाना चाहिए जे कर्जा रही है तो फिर बंदे फिर आने पड़ेगा तो अच्छा मुक्की जाना फिर जी तो एक भगत रोज साढ़े बिल पत्तर दे वृक्ष लियान देना इथों लागे वो साढ़े भगत साहब बेचारे इन्हें अपने कोठे पर लाए दे होंदे बूटे दान करते हैं कोई मुल्ले नहीं दिंदे दान बिल वृक्ष लाना ते शिव जी का एक मंदिर बनाना फल बराबर और उसी पालना भी है उस बिल की पालना ते शिव जी का मंदिर बनाने का फल लभी बिल वृक्ष का इन्ना मात तो किन्नी मेहनत बंदा करता हो कि जेड़ा बिल वृक्ष इन्ने सोहने लाइए ते बोले बाबा के दरबार दे विच दान करदा इस करिए फ्री आरती दे बाद तुस ले सकते हो उते थोड़े मंदिर जिथे को लागे होवे मंदिर च लाओ अपने घर लाओ अपनी बाड़ी च लाओ ओदे फिर पत्थर जियां जियां कोई शिव जी दे चढ़ाग इयां इयां थोड़े अकाउंट दे विच पुण्य आउंदा जाए ते ये भगत बेचारा रोज ये सेवा करदा आरती दे बाद च तुसीं उन्हां नूं प्रसाद भी लिए जाना है कमेटी की तरफा रोज प्रसाद हुंदा ओदे बाद च तुसीं लंगर भी खाइए जाना कल भी तुसीं लंगर खाना भगवान दा फिर थोड़ा सावन मास जिहड़ा कबूल हो जाना शिव जी तो इस करिए जिन्हें जिन्हें भी ये बिल वृक्ष लेना हो वो आरती के बाद ले सकते हैं सारे खड़े हुई है भगवान की पवित्र आरती करी लो आरती के बाद फिर तुसें रोटी खाई लाओ पहले तू नवेद ले लाओ फिर रोटी खाइए जाए लंगर जेड़ा सारी कमेटी की तरफा चला दा कोई भी आनी प्रसाद खाई सकता खल के पासे लंगर ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ महाशिव हरे दांगी तारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतर भुज भुज के सोहे बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप में रखता तीनों रूप में रखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षय माला बन माला रुंड माला दारी बोले रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे मृग मद सोहे बोले सुवकारी ओम हरे 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 महादेव पर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक बोले
भूतादिक संगे ओम हरे 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 करे श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता मूल चक्र त्रिशूल धरता यज्ञ करता यज्ञ हरता यज्ञ करता यज्ञ हरता यज्ञ पालन करता ओम हरे हरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञानत अविवेका मूल ज्ञान अविवेका प्रणवाक्षर के मादे ओम अक्षर के महादेव ये तीनों एका ओम हरे हरे त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई रोज गावे कोई नित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांसत फल पावे ओम हरे हरे जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वाले नाथ सदा शिव हरे गांगी तारा ओम हरे 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 बोल सियापति रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान उमापति महादेव लक्ष्मी नारायण भगवान